Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे डिफेंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फॉर अक्टूबर मंथ. काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा. चलिए स्टार्ट करें. सबसे पहले पूछा जा रहा है कि किस कंट्री ने अलॉन्ग विद इंडिया अभी 11th एडिशन ऑफ संप्रीति एक्सरसाइज कंडक्ट करी उमरोई मेघालय में. तो हम बात कर रहे हैं संप्रीति एक्सरसाइज की, राइट. संप्रीति एक्सरसाइज किन के बीच में हुई? इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में ये एक्सरसाइज हुई, पहली चीज़. फिर याद रखेंगे ये 11th एडिशन था इस एक्सरसाइज का. 3 अक्टूबर से ये स्टार्ट हुई थी. लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, जो हमें ऑप्शन क्वेश्चन में भी गई हुई है. उमरोई मेघालय में ये एक्सरसाइज कराई गई थी. दूसरे क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि संप्रीति एक्सरसाइज का 11th एडिशन कहाँ पर हुआ था? तो इंडिया के उमरोई मेघालय में हमें देखने को मिला था. नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि अभी एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज हुई थी चक्रवात 2023. ये इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी चक्रवात. पूछा जा रहा है ये चक्रवात एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी? लोकेशन पूछी जा रही है आपसे. देखा आ गई ना लोकेशन. तो ये गोवा में हुई थी, सबसे पहले ये याद रखेंगे. फिर गोवा में ही 37वें नेशनल गेम्स हुए थे, जहाँ पर महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा मेडल सिक्योर किए थे. फिर ये याद रखेंगे, राइट. तो गोवा में हुई थी ये चक्रवात, इंडियन नेवी के द्वारा कराई गई थी. 9 से 11 अक्टूबर तक हुई थी, गोवा में हुई थी. ठीक. फिर याद रखेंगे ये जो HADR एक्सरसाइज है सागर इनिशिएटिव के अंडर हुई थी. सागर क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इनिशिएटिव, सागर इनिशिएटिव. तो कहां पर? गोवा में. नेक्स्ट, देन नेम द 2-day कॉम्प्रिहेंसिव कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज. कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज हुई अभी, जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था. क्या नाम रहेगा इस कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज का? तो ये है ईस्ट कोस्ट सागर कवच, राइट. ये एक्सरसाइज है, इन लोकेशन पे हुई थी. यहाँ पे 2500 से भी ज़्यादा पर्सनल्स ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, मरीन्स, इंटरनेशनल एजेंसीज, फिशरीज, मरीन पुलिस, राइट. इन सब के द्वारा यहाँ पर ये एक्सरसाइज देखी गई. नेक्स्ट, नेम द सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो अभी कंडक्ट कराई गई इंडियन नेवी के द्वारा इन आंध्र प्रदेश. काकिनिदा आंध्र प्रदेश में एक्सरसाइज कराई गई. क्या नाम रहेगा? प्रस्थान, राइट. सिक्योरिटी एक्सरसाइज थी, इंडियन नेवी के द्वारा कराई गई. एंड इंडियन नेवी में भी अगर बात करें, ईस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा ये एक्सरसाइज कराई गई थी, प्रस्थान, आंध्र प्रदेश में. करेक्ट, मार्क करेंगे. इसमें भी 2500 से भी ज़्यादा पर्सनल का यहाँ पार्टिसिपेशन देखने को मिला. फिर इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट, मरीन पुलिस एक्सेट्रा. फिर यहाँ पे 2 इंडियन नेवल शिप का याद रखेंगे, INS कोरा एंड INS तिहायू. इन दोनों के द्वारा इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया गया. नेक्स्ट आ जाता है एक चीज़ और यहाँ पर. अभी इंडियन नेवी फरवरी में 2024 में एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराएगी मिलान के नाम से, जहाँ पे हम 50 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन देखेंगे उनकी नेवीज का इन दिस एक्सरसाइज, और ये अरेबियन सी में होगी. ठीक.
नेक्स्ट एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति, ये एक 2 वीक इंडो मलेशिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड मलेशियन आर्मी। पूछा जा रहा है कि इस एक्सरसाइज को कहाँ कंडक्ट कराया गया, तो याद रखेंगे हरिमऊ शक्ति। हरिमऊ शक्ति ये एक्सरसाइज इंडियन आर्मी एंड मलेशियन आर्मी के बीच में हुई, और कहाँ पर हुई लोकेशन पूछा जाए तो मेघालय में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। और इससे जो पुराना एडिशन था 2022 में जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, वो आपका मलेशिया में कंडक्ट कराया गया था। एंड 2012 से हर साल ये एक्सरसाइज इन दोनों कंट्रीज के बीच में होती आ रही है, हरिमऊ शक्ति। तो दोस्तों ये तो थे डिफेंस। अब आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। तो अभी रिसेंटली डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन के, इनके द्वारा लॉन्च किया गया द डैश ग्रीवियंस मॉनिटरिंग सिस्टम 2.0, राइट। तो सबसे पहले ये IGMS की फुल फॉर्म ही यहाँ पे पूछा जा रहा है, इंटेलिजेंट ग्रीवियंस मॉनिटरिंग सिस्टम IGMS 2.0। ये एक ग्रीवियंस पोर्टल रहेगा एंड ऑटोमेटेड एनालिसिस इन ट्री डैशबोर्ड पोर्टल रहेगा ऑफ DARPG, जो अभी लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन 5 यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहता है। ठीक, नेक्स्ट फिर यहीं पे याद रखेंगे इनके द्वारा अभी एक स्पेशल स्वच्छता कैंपेन भी लॉन्च किया गया था, स्पेशल स्वच्छता कैंपेन 3.0। ठीक, कब लॉन्च किया गया था, ये 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया, जो कि महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी है, क्योंकि उन्हीं के बर्थडे पे आपको याद होता है हर साल हम स्वच्छता कैंपेन लॉन्च करते हैं। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट किया फर्स्ट ऑफ 6 न्यू डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट। ये डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट अगर आपको याद हो, ये श्रीलंका को भी गिफ्ट दिया गया था बाय इंडियन नेवी, ताकि श्रीलंका की जो सेफ्टी है, जो सर्वेलेंस है, उसको एनहांस करने के लिए। पहला एडिशन दिया गया था, जो पहला एयरक्राफ्ट दिया गया था वो वापस आ गया था इंडिया के पास फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और इंडिया ने फिर सेकेंड एक दूसरा डॉर्नियर 222 एयरक्राफ्ट यहाँ पे गिफ्ट दिया था टू श्रीलंकन नेवी। तो पूछा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा फर्स्ट ऑफ द 6 न्यू डॉर्नियर 222 एयरक्राफ्ट, ये 19 सीटर एयरक्राफ्ट है। पूछा जा रहा है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, किसके द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया। नेक्स्ट, और इसका बजट कितना रहेगा, 667 करोड़ रुपीस का इसका बजट रहेगा, इससे इसको यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया गया। नेक्स्ट, नेम द यूनिवर्सिटी दैट हैज पार्टनर्ड विद ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के साथ अभी किस यूनिवर्सिटी ने पार्टनर किया ताकि एक UTIKS पोर्टल को लॉन्च किया जा सके। ये क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम, UTIKS पोर्टल। तो कौन सी यूनिवर्सिटी रहेगी, वो है सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। इन्होंने ICCR के साथ मिलकर यहाँ पे ये UTIKS पोर्टल को लॉन्च करा। ठीक, और ये UTIKS पोर्टल बेसिकली क्या काम करेगा, इसका क्या किस ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, बेसिकली इंडियन कल्चर को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करने के लिए, राइट, ताकि वर्ल्ड वाइड जो ऑडियंस है ग्लोबली इंडिया के कल्चर को, इंडिया की रिच सिविलाइजेशन को इन अ लर्नर फ्रेंडली मैनर उनके सामने ले जाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, नेम द स्पेस एजेंसी कंपनी दैट हैज रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट 2 प्रोटोटाइप सैटेलाइट्स ऑफ क्यूपरसैट-1 एंड क्यूपरसैट-2 बाय यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5 रॉकेट टू लो अर्थ ऑर्बिट फॉर प्रोजेक्ट क्यूपर सैटेलाइट सिस्टम। तो अमेजॉन कॉर्पोरेशन, इनके द्वारा यहाँ पे याद रखेंगे ये 2 फर्स्ट 2 प्रोटोटाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स क्यूपरसैट-1 एंड क्यूपरसैट-2, इनको यहाँ पे लॉन्च किया गया, और किसकी मदद से, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5 रॉकेट की मदद से। कहाँ से, केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन जो कि फ्लोरिडा USA में है, वहां से। Next, which company has recently handed over the first integrated airdrop test crew module structure to ISRO for Gaganyaan spacecraft? तो किसके द्वारा ये हैंड ओवर किया गया, KCP हेवी इंजीनियरिंग के द्वारा ये इनको हैंड ओवर किया गया फॉर टू ISRO फॉर द पर्पज ऑफ असेसिंग टेक्नोलॉजी रेडीनेस, मतलब जो गगनयान स्पेसक्राफ्ट है उसकी जो टेक्नोलॉजी है क्या वो रेडी है या नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए बेसिकली ये लॉन्च किया गया, हैंड ओवर किया गया। नेक्स्ट, कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया पहला प्राइवेट सब ऑर्बिटल यूरोपियन रॉकेट म्यूरा-1 SN1। ये म्यूरा-1 SN1 किस कंपनी का रॉकेट रहेगा, PLD स्पेस, राइट, ये एक स्पेनिश कंपनी है, इनका ये म्यूरा-1 SN1 रॉकेट रहेगा, जो कि पहला प्राइवेट सब ऑर्बिटल यूरोपियन रॉकेट है, म्यूरा-1 SN1। ठीक, नेक्स्ट, इन अक्टूबर ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी इन्होंने टेस्ट किया लैंड अटैक वेरिएंट ऑफ द एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम द डैश स्टेट। सबसे पहले तो याद रखेंगे जो ब्रह्मोस, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल है ना, सुपरसोनिक मिसाइल, इसका एक एक्सटेंडेड रेंज जो कि लैंड वेरिएंट है, करेक्ट, इसको यहाँ पे टेस्ट किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल है ये किसके बीच में जॉइंट वेंचर है, रशिया एंड इंडिया के बीच में, एंड इसको कहाँ पर अभी टेस्ट किया गया ये पूछा जा रहा है, तो इसको टेस्ट किया गया फ्रॉम यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट,
किस कंपनी ने अभी रिसेंटली साइन किया एक एमओयू स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो कि आम है इसरो का टू यूज लाइट बेस्ड हाई स्पीड कम्युनिकेशन फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन इन स्पेस। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लाईफाई की। हम जानते हैं वाईफाई क्या होता है, जो आपके घर में इंटरनेट प्रोवाइड कराता है, वायरलेस फाइडेलिटी। लाईफाई क्या है, लाइट फाइडेलिटी। तो लाइट की बेसिस की लाइट की मदद से आपका और फास्ट आपका कम्युनिकेशन हो सके, राइट। ये आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाएगा स्पेस में। तो किस कंपनी ने अभी रिसेंटली एक एमओयू साइन किया एसएससी इसरो के साथ, ताकि ये लाइट फाइडेलिटी प्रोवाइड कराई जा सके। और ये 3 साल का एमओयू साइन किया गया है, वो है नव वायरलेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, करेक्ट। और नवटेक याद रखेंगे, ये वो पहली इंडियन कंपनी बन गई है जो कि लाईफाई सर्विस प्रोवाइड करा रही है, लाईफाई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा रही है टू साक इसरो, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी इनके सियाचिन वॉरियर्स के द्वारा भी एक कोलैबोरेशन किया गया बीएसएनएल के साथ, ताकि फर्स्ट एवर बीएसएनएल बेस्ड ट्रांस रिसीवर स्टेशन को सेटअप किया जा सके ऑन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर में। ये सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया, तो लद्दाख में रहेगा आपका सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट आ जाएगा कि किस कंपनी ने भी रिसेंटली एक एमओयू साइन किया NICSI के साथ, जो कि है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विस इनकॉर्पोरेशन के साथ, फॉर वेरियस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज। तो किस कंपनी ने यहाँ पे एक एमओयू साइन किया, तो वो साइन किया गया है REC लिमिटेड के द्वारा, राइट। REC इन्होंने एक एमओयू साइन किया नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विस इनकॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ फॉर वेरियस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस। इसके अंदर जो REC का इकोसिस्टम है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये चीज़ें सीखेंगे अबाउट IoT, राइट। ये डेवलपमेंट पे फॉस्टर कर मतलब डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे ऑन टेक्नोलॉजी सच एज IoT, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, देन डाटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन एंड साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट, नेम द स्पेसक्राफ्ट जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च्ड बाय नासा टू एन इंटरप्लैनेटरी ट्रांसफर ऑर्बिट बाय यूजिंग स्पेसएस फैल्कन 9 रॉकेट फ्रॉम फ्लोरिडा USA। तो देखो याद रखेंगे, नासा के द्वारा अभी एक मिशन लॉन्च किया गया था, एक साइक नाम का एक एस्ट्रॉयड है, उसको स्टडी करने के लिए, वहाँ से सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था यूजिंग फैल्कन 9 रॉकेट, करेक्ट, जो कि SpaceX का है। तो पूछा जा रहा है इस स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या रहेगा, तो इस एस्ट्रॉयड के बेसिस पे इसका नाम रखा गया साइक एयरक्राफ्ट, साइक स्पेसक्राफ्ट। और याद रखेंगे जो ये आपका एस्ट्रॉयड है ना, ये बेसिकली एस्ट्रॉयड क्या है, यहाँ पे मेटल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रॉक और आइस। Moving on, name the third stealth destroyer of Project 15B class guided missile destroyer that has been delivered to Indian Navy in October 2023। तो वो याद रखेंगे है यार्ड 12706 इम्फाल। ये मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया, इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाएगा। एंड 4 शिप्स यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे अंडर दिस प्रोजेक्ट, जो कि सिटीज़ के नाम पे भी यहाँ पर है, विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इम्फाल एंड सूरत। और इम्फाल अभी हमने देख लिया, ये डिलीवर कर दिया गया है। नेक्स्ट है S कृष्णन, जो कि सेक्रेटरी हैं ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। इनके द्वारा लॉन्च किया गया इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी ऑफ 2 किलोवाट DC पोर्टेबल चार्जर डिजाइंड टू मीट द न्यू सेफ्टी स्टैंडर्ड IEC 6950-11, करेक्ट। तो पूछा जा रहा है कि किस कंपनी ने अलॉन्ग विद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट IIT मद्रास रिसर्च पार्क इन चेन्नई तमिलनाडु डेवलप किया ये पोर्टेबल चार्जर। तो ये रहेगी फ्लोट्रिक टेक्नोलॉजीज, राइट। ये तो इनके द्वारा डेवलप किया गया। और ये जो IEC 60950 ये सर्टिफिकेशन है ना, बेसिकली ये सेफ्टी स्टैंडर्ड को दर्शाता है ऑफ एनी टेक्नोलॉजी, राइट, ऑफ एनी IT टेक्नोलॉजी। एंड यहाँ पे ये जो पोर्टेबल चार्जर है, ये फ्लोट्रिक टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद IIT मद्रास रिसर्च पार्क जो चेन्नई तमिलनाडु में है, इनके द्वारा डेवलप किया गया। नेक्स्ट, इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉट मिशन 1 ऑफ डैश मिशन फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो याद रखेंगे ये गगनयान मिशन का भी टेस्ट किया गया था, फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉट मिशन था, राइट। एंड ये किया गया था ताकि ऑल जो भी सिस्टम्स हैं वो सारे अच्छे से वर्क कर रहे हैं, दे आर वर्किंग प्रॉपरली। एंड जब वो फाइनल उसका मिशन का टाइम आएगा तब कोई दिक्कत ना है, इसीलिए ये टेस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया एयर लॉन्च्ड वर्जन ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम डैश फाइटर जेट इन एन एयरबेस इन बे ऑफ बंगाल। तो एक एयरबेस है बे ऑफ बंगाल में, वहां पर से अभी याद रखेंगे इंडियन एयरफोर्स ने यूजिंग सुकोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट की मदद से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया गया था। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, फाइटर जेट, तो क्या रहेगा वो सुकोई 30 मार्क 1, ठीक है। और इसकी रेंज कितनी रहेगी सुपरसोनिक वेपन की, 1500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी। डेवलप किसके द्वारा किया गया, ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा। नेक्स्ट, डैश बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू टेस्ट फायर अ मीडियम कैलिबर मैरीटाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन फ्रॉम ऑफशोर प्लेटफॉर्म। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जापान, राइट। जापान वो पहली कंट्री बन गया इन द वर्ल्ड टू टेस्ट फायर अ मीडियम कैलिबर मैरिटाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन फ्रॉम एन ऑफशोर प्लेटफॉर्म। ठीक, चलिए नेक्स्ट, किस कंट्री की आर्मी ने रिसेंटली कंडक्ट किया एक ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ गौरी वेपन सिस्टम। तो ये जो गौरी वेपन सिस्टम है ना, पूछा जा सकता है ये किस कंट्री का वेपन सिस्टम रहेगा, तो पाकिस्तान का ये वेपन सिस्टम रहेगा गौरी वेपन सिस्टम। 1300 किलोमीटर से लेके 1500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी गौरी वेपन सिस्टम की। नेक्स्ट, इन विच स्टेट और यूटी इंडियन आर्मी का पहला वर्टिकल विंड टनल हैज बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल बाय जनरल मनोज पांडे, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहेंगे। तो किस स्टेट में इंडियन आर्मी का पहला वर्टिकल विंड टनल को अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया, तो ये याद रखेंगे कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में रहेगी आपकी पहली इंडियन आर्मी की वर्टिकल विंड टनल। ये ऐसी आपकी टनल रहेगी, यहाँ पर आपके फैंस होंगे नीचे, राइट, और ये काफ़ी तेज़ हवा को ऊपर फेंकेंगे, जिससे आपकी जो इंडियन एयरफोर्स की जो लैंडिंग्स होती हैं, राइट, जो ऊपर से हवा में आपके जंप करते हैं बेसिकली, जो हमारे इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के जो पर्सनस होते हैं, राइट, उसके टाइम पे स्काई डाइविंग के टाइम पे उनकी यहाँ पे प्रैक्टिस कराने के लिए ये आपकी पहली वर्टिकल विंड टनल है, जो कि जब हिमाचल प्रदेश में लॉन्च की गई। नेक्स्ट, which country has recently launched 30th flight mission Shenzhou 17 along with 3 astronauts to the Tiangong space station। ये Tiangong space station किसके द्वारा डेवलप किया गया है, चाइना के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, राइट। एंड ये Tiangong space station यहाँ पर अभी 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा गया, राइट। और पूछा जा रहा है फ्लाइट मिशन था Shenzhou 17, ये किस कंट्री का रहेगा, तो ये चाइना के द्वारा यहाँ पे 3 एस्ट्रोनॉट्स को अभी भेजा गया, लॉन्ग मार्च 2FY-17 रॉकेट की मदद से यहाँ पर इसको स्पेस में भेजा गया। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने भी रिसेंटली अनवेल किया विक्रम 1 ऑर्बिटल स्पेस लॉन्च व्हीकल फ्रॉम GMR एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क इन साउथ हैदराबाद, तेलंगाना। तो ये कौन सी कंपनी है जिन्होंने भी रिसेंटली अनवेल किया विक्रम 1 ऑर्बिटल स्पेस लॉन्च व्हीकल को, तो वो है स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, राइट। इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया इस विक्रम 1 ऑर्बिटल स्पेस लॉन्च व्हीकल को, करेक्ट। और ये जो विक्रम 1 रॉकेट है, ये कितना लोड कैरी कर सकता है, 480 किलोग्राम लोड कैरी कर सकता है इनटू लो अर्थ ऑर्बिट, जो कि 500 किलोमीटर हाई रहेगी। और ये विक्रम 1 जो है ये ऑल कार्बन फाइबर बॉडी है। कार्बन फाइबर बॉडी का हेल्प क्या होता है, एक तो ये लाइट वेट होती है और दूसरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। एंड इस सैटेलाइट के जो मल्टीपल फीचर्स हैं, जैसे बेसिकली बात करूं, लिक्विड इंजन है, ये 3D प्रिंटेड रहेगा। नेक्स्ट, इन विच स्टेट साइंटिस्ट अंडर द बायो एनर्जी ग्रुप एट अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने भी नया जीनस ऑफ एनारोबिक लिंगोसेलुलोस डिग्रेडिंग बैक्टीरिया को डिस्कवर किया और उसका नाम रखा गया स्पोरा एनारोबियम हाइड्रोजेनिफॉर्मन्स, राइट। आई रिपीट, स्पोरा एनारोबियम हाइड्रोजेनिस फॉर्मन्स, ये नाम रहेगा ऑफ न्यू एनारोबिक लिंगोसेलुलोस डिग्रेडिंग बैक्टीरिया का। ये नया जेनिस है बैक्टीरिया का, एनारोबिक बैक्टीरिया का। ये अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया। पूछा जा रहा है ये अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है इनडायरेक्टली, तो ये महाराष्ट्र में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक MOU फ्रांस की सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन्स के साथ टू डेवलप इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन इन रिंग फॉर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग फॉर कमर्शियल इंजन्स। तो याद रखेंगे ये कौन सी कंपनी है, ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हॉल, राइट। हॉल ने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया फ्रांस की सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन्स के साथ, ताकि इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन डेवलप किया जा सके इन रिंग फॉर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग फॉर कमर्शियल इंजन्स। हॉल की बात करें, ये एक नवरत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। नेक्स्ट, कमांडर सुनील कौशिक, वॉरशिप प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट ऑफ मुंबई, इनके द्वारा लॉन्च किया गया 25T बोलार्ड पुल टग ऑफ डैश MS सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड पे इन भरूच, गुजरात। तो ये कौन सा यहाँ पर जो टग है ये लॉन्च किया गया यहाँ पे, वो है यार्ड 305 महाबली, राइट। इसको लॉन्च किया गया, करेक्ट, कहाँ पर, सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड, जो कि भरूच, गुजरात में है। एंड ये जो टग्स हैं ये इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग के अंडर इनको डेवलप किया जाता है उनके रूल्स के हिसाब से। एंड ये जो टग्स हैं ये आपकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को इंडियन नेवी की काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेंगे एंड फायर फाइटिंग असिस्टेंस में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इन फायर फाइटिंग ही नहीं बल्कि जो रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन होते हैं उसमें भी ये टग काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। Next, in which city Ericsson has recently announced to set up a 6G research and development center? तो किस सिटी में एरिक्सन के द्वारा एक 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर सेटअप करने की बात की गई, वो है चेन्नई, तमिलनाडु, राइट। इसी के अलावा याद रखेंगे नॉट जस्ट एरिक्सन, अगर हम बात करें नोकिया की, इनके द्वारा भी एक 6G लैब को इस्टेब्लिश किया गया था जो कि एक ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब है, कहाँ पर, बेंगलोर में। नेक्स्ट, व्हेन वाज UN इंटरनेशनल डे फॉर एरेडिकेशन
तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिफेंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, राइट। ये है अक्टूबर मंथ के। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन करंट अफेयर्स पे जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेंगे। व्हाट इज द मिनिमम ईयर्स फॉर विच ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स विल बी लीज। तो याद रखेंगे अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा अभी लीज के रूल्स, यहाँ पे न्यू लीज रूल्स लॉन्च किए गए हैं। ऑन इन न्यू लीज रूल्स के आधार से हम देख रहे हैं कि जो ये ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स है ना, इनको 3 साल के लिए यहाँ पे लीज किया जाएगा फॉर कंडक्टिंग रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सर्विस, एंड फिर इसको 2 साल के लिए अलग से एक्सटेंड कर दिया जाएगा और 5 साल के बाद ये लीज यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। लेकिन इसके बाद याद रखेंगे जो ये इसके बाद जब आपकी कंस्ट्रक्शन की बारी आएगी ना, कि आपको मान लो विंड एनर्जी प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन करनी है वहाँ पर, राइट, तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर आपको फंक्शनैलिटी लानी है, तो फिर आपकी 35 साल तक की आपकी लीज यहाँ पर प्रोवाइड की जा सकती है। पर इनिशियली जो मिनिमम लीज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी फॉर ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स वो रहेगी 3 साल की, मिनिमम 3 साल की, इसके बाद 2 साल भी एक्सटेंड किया जा। मूविंग ऑन, किस यूनिवर्सिटी ने अभी मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 को जीत लिया फॉर द रिकॉर्ड 25th टाइम। इससे पहले याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, अनुराग सिंह ठाकुर, इनके द्वारा अभी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया लोगों को, राइट। यहाँ पर 42 स्पोर्ट्स पर्सन, कोचिज एंड एंटिटीज को यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम, ठीक है। तो अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स लॉन्च किए गए, अनाउंस किए गए, एंड अवार्ड दिया गया द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा राष्ट्रपति भवन में, पहली चीज। अब क्वेश्चन आ रहा है आपका कि किस यूनिवर्सिटी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी को जीत लिया है, तो वो है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर पंजाब में ये रहेगी, ठीक। और इस यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी को जीत लिया फॉर द रिकॉर्ड 25th टाइम। पहली चीज तो ये हो गई। अब इसके अलावा और याद रखेंगे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो रहेंगे बैडमिंटन के प्लेयर्स चिराग चंद्रशेखर सेठी एंड रानिक रेड्डी स्वास्तिक साईराज, इन दोनों को यहाँ पर सम्मानित किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से, ये बैडमिंटन प्लेयर है। देन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अभी हमने देखा अमृतसर पंजाब, इनको मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी से सम्मानित किया गया फॉर 25th टाइम। अर्जुन अवार्ड्स की बात करें तो 26 अवार्ड इसको दिया जाएगा। द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है कोचेस को, तो 8 कोचेस को यहाँ पे दिया जाएगा। ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात करें तो 6 अवार्ड इसको यहाँ पर इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, सोनी स्पोर्ट्स हैज रॉब्ड, नॉट रॉब्ड, रॉब्ड, और हम बोले अपॉइंटेड किनको, एज किस सेक्टर को एज देयर ब्रांड एम्बेसडर फॉर फुटबॉल कैंपेन। तो याद रखेंगे कार्तिक आर्यन को यहाँ पर अभी सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने अपॉइंट किया है एज देयर ब्रांड एम्बेसडर, ताकि जो इनका सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क का जो कैंपेन है योर होम ऑफ फुटबॉल, इसके लिए यहाँ पर इनको अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर, किनको, कार्तिक आर्यन को, ठीक। यहाँ पे इंक्लूड करेगा यूएफए यूरोपियन चैंपियनशिप, देन यूएफए चैंपियंस लीग, यूएफए यूरोपा लीग, यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग, यूएफए नेशंस लीग, बुंदेसलीगा, एमरेट्स एफए कप, दुरंत कप, रोशन सऊदी लीग एंड अमंग्स अदर। यहाँ पर बेसिकली इंडिया में फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए इनको यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। मूविंग ऑन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा अनवेल किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन जो एम्पावर करता है जूट फार्मर्स को। कैसे एम्पावर करता है, इनको यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बताएगा, यहाँ पर वेदर फॉरकास्ट प्रोवाइड कराएगा, यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताएगा, यहाँ पर फार्मिंग के आइडियाज़ बताएगा, ट्रिक्स के बारे में बताएगा कि कैसे आप और बेटर तरीके से फार्मिंग कर सकते हो जूट की, और बेटर तरीके से कैसे आप जूट का केयर कर सकते हो, उसको सेव कर सकते हो, राइट। तो इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी गई। पूछा जा रहा है क्या नाम रहेगा, देखो लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। एप्लीकेशन रहेगी पाथ मित्रों, और इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया पाथ मित्रों को, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया गया था पाथ मित्रों को। पाथ मित्रों 6 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, राइट। एंड यहाँ पर एक चैटबॉट भी प्रोवाइड कराया जाता है इस एप्लीकेशन में, कि अगर किसी भी फार्मर्स को, अभी किसी भी व्यक्ति को जो कि जूट इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उनको पेमेंट से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है या फिर किसी और चीज़ से उनको कोई दिक्कत आ रही है, तो वो कॉन्टैक्ट कर सकें ऑन दिस चैटबॉट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं 25th एशियन यूथ चेस चैंपियन की। इसके दौरान इंडिया के चेस प्लेयर कियाना परिहर, राइट, अंडर 8 एज गर्ल्स की कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। एंड वहीं पर हर्ष सुरेश अंडर 16 ओपन की कैटेगरी में इन्होंने भी यहाँ पे गोल्ड मेडल
जीता इन दिस 25th एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप, जो कि अल एन सिटी में हुई ऑफ अबू धाबी इन यूएई फ्रॉम 12 से 22 दिसंबर। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ डी गुकेश, इन्होंने यहां पर चेन्नई ग्रैंड मास्टर टाइटल को भी जीत लिया है, राइट, मार्क करके चलेंगे। डी गुकेश अभी चेन्नई ग्रैंड मास्टर टाइटल का इनॉग्रल एडिशन हुआ था, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था, 15 से 31 दिसंबर तक हुआ था, एंड इन्होंने यहां पर गोल्ड मेडल जीत लिया है, या फिर इन्होंने इस टाइटल को जीत लिया है बेसिकली। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो छठा एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर होगा? तमिलनाडु में होगा। यहां पर एक मैस्कॉट का नाम याद रखेंगे, क्या नाम रहेगा मास्कॉट का? वीरा मनगाई। यहां पे जो टॉर्च है उसका नाम याद रखेंगे, वो है थामजी, राइट। तो अब देख पढ़ते हैं इसके बारे में। अभी हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। इनके द्वारा ऑफिशियल जर्सी, लोगो, मास्कॉट इसको लॉन्च किया गया ऑफ द 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि तमिलनाडु में होंगे। ठीक है, फिर यहीं पे मैस्कॉट हमने क्या देखा? वीरा मंगाई। हमने टॉर्च का नाम क्या देखा? थामजी। ये वीरा मंगाई क्या है? एक लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर, तमिल क्वीन वीलू नचियार के बेसिस पे ये मैस्कॉट अपॉइंट किया गया है यहाँ पर। देन जो छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स है तमिलनाडु में होगा, 4 सिटीज में होगा, चेन्नई, त्रिची, मदुरई, कोयम्बटूर। 19 जनवरी से 31 जनवरी तक 2024 में होगा, राइट। और इसी के अलावा अगर पूछा जाए कि 5वां एडिशन, ये तो छठा एडिशन हो गया, 5वां एडिशन का हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, तो दिल्ली एंड पुणे महाराष्ट्र में हमें ये देखने को मिला था। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे जो खेलो इंडिया गेम था ना, सबसे पहले सिर्फ खेलो इंडिया की बात करें तो खेलो इंडिया इनिशिएटिव 2017 में लॉन्च किया गया था, ताकि स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा सके एंड इंडिया में स्पोर्ट्स को, क्योंकि हम देखते हैं क्रिकेट का कितना बड़ा एक योगदान है, लोग कितने ज़्यादा क्रेजी हैं आपके फुटबॉल क्रिकेट से रिलेटेड। सिमिलरली इंडिया में स्पोर्ट्स से बाकी स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। एंड फिर इसके अलावा खेलो इंडिया स्कूल गेम्स ये लॉन्च किया गया था 2018 में, और खेलो इंडिया स्कूल गेम्स को ही चेंज करके खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया था 2019 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये हम देख ही चुके हैं, पहला एडिशन 2018 में हुआ था और अभी छठा एडिशन हो रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, कहां पर? तमिलनाडु में। एक चीज और, ये जो लास्ट एडिशन था 5th एडिशन, याद रखेंगे अक्रॉस दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला, भोपाल, यहां पर हमें देखने को मिला था। मूविंग ऑन, ऑबिटरी की बात करते हैं तो रॉबर्ट एम सोलो ये नोबेल प्राइज विनर रहेंगे। इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था इन इकोनॉमिक्स इन 1987 एंड इनका भी निधन हो गया एट द एज ऑफ 99। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज पे आ जाते हैं। नेशनल फार्मर्स डे या फिर हम बोले किसान दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 23 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल फार्मर्स डे या फिर किसान दिवस, एंड दिस इज बेसिकली टू हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर इन आर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। फिर याद रखेंगे ये जो नेशनल फार्मर्स डे ना, किन की बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है? चौधरी चरण सिंह की बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है। ये 5th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के फ्रॉम 1979 टू 1980, एंड जो फार्मर्स कम्युनिटी है, इंडियन फार्मर्स कम्युनिटी है, उनके ये लीडर भी थे, चौधरी चरण सिंह, करेक्ट। और इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पर हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल फार्मर्स डे या फिर किसान दिवस। 2023 में 121वीं बर्थ एनिवर्सरी यहां पर ऑब्जर्व की गई चौधरी चरण सिंह की। ठीक, और पहली बार आपका नेशनल फार्मर्स डे कब ऑब्जर्व किया गया था? सन 2001 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। नेम द यूनिवर्सिटी दैट हैज पार्टनर्ड विद ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के साथ अभी किस यूनिवर्सिटी ने पार्टनर किया ताकि एक UTIKS पोर्टल को लॉन्च किया जा सके? ये क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम, UTIKS पोर्टल। तो कौन सी यूनिवर्सिटी रहेगी? वो है सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। इन्होंने ICCR के साथ मिलकर यहाँ पे ये UTIKS पोर्टल को लॉन्च करा। ठीक, और ये UTIKS पोर्टल बेसिकली क्या काम करेगा? इसका क्या किस ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? बेसिकली इंडियन कल्चर को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करने के लिए, राइट, ताकि वर्ल्ड वाइड जो ऑडियंस है ग्लोबली इंडिया के कल्चर को, इंडिया के रिच सिविलाइजेशन को इन अ लर्नर फ्रेंडली मैनर उनके सामने ले जाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, नेम द स्पेस एजेंसी कंपनी दैट हैज रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट 2 प्रोटोटाइप सैटेलाइट्स ऑफ क्यूपरसैट 1 एंड क्यूपरसैट 2 बाय यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5 रॉकेट टू लो अर्थ ऑर्बिट फॉर प्रोजेक्ट क्यूपर सैटेलाइट सिस्टम। तो अमेजॉन कॉर्पोरेशन इनके द्वारा यहाँ पे याद रखेंगे ये 2 फर्स्ट 2 प्रोटोटाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स क्यूपरसैट 1 एंड क्यूपरसैट 2
इनको यहाँ पे लॉन्च किया गया और किसकी मदद से? यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5 रॉकेट की मदद से। कहाँ से? केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन जो कि फ्लोरिडा यूएसए में है, वहां से। नेक्स्ट, which company has recently handed over the first integrated airdrop test crew module structure to ISRO for गगनयान spacecraft? तो किसके द्वारा ये हैंड ओवर किया गया? केसीपी हैवी इंजीनियरिंग के द्वारा ये इनको हैंड ओवर किया गया फॉर टू इसरो फॉर द पर्पज ऑफ असेसिंग टेक्नोलॉजी रेडीनेस, मतलब जो गगनयान स्पेसक्राफ्ट है उसकी जो टेक्नोलॉजी है क्या वो रेडी है या नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए बेसिकली ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इन्होंने भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना हम उनको हेल्प कर सकें। देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या हो जाते हैं, जैसे आपके आर्टिशियंस हो गए, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल किन्होंने कोई साबुन बनाया, राइट, सोप बना दिया किसी ग्रुप ने, राइट, वो सोप की मार्केट कर रहे हैं। फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट है, कोई दूसरी मार्केट में आ जाते हैं, हम देख रहे हैं वहाँ पे वो आपके कपड़े बना रहे हैं, राइट, आपके क्लोथ्स बना रहे हैं। दूसरी मार्केट में हम देख रहे हैं हम आपकी जो चप्पल होती है वो बना रही हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है। तो इससे क्या होगा, ये बना तो देते हैं लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है, जब ये सेल नहीं कर पाते इन प्रोडक्ट को, इनकी ऑडियंस बहुत लिमिटेड हो जाती है, राइट, जहाँ पे ये सेल कर सकें। तो उसी चीज़ को हेल्प करने के लिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने अभी एक एमओयू साइन किया जियो मार्ट के साथ, ताकि इन आर्टिशियंस को, इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके जहाँ पे ये अपने प्रोडक्ट्स जो ये बनाएंगे उसको सेल कर सकें, राइट। इससे क्या होगा, इनकी ऑडियंस में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, राइट। तो ये जियो मार्ट के साथ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने यहाँ पे एक एमओयू साइन किया ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको यहाँ पे हेल्प किया जा सके। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने अभी एक तो लोन अप्रूव किया $300 मिलियन का, एक लोन अप्रूव किया है $100 मिलियन का। ये दो लोन याद रखेंगे। $300 मिलियन का जो लोन अप्रूव किया गया है ये तमिलनाडु स्टेट के लिए किया गया है, ताकि यहाँ का जो अर्बन वाटर सीवेज सिस्टम है उसको हम और बेटर कर सकें, उसमें डेवलपमेंट ला सकें, और जहाँ पे भी कुछ भी टचअप्स की ज़रूरत है, राइट, जहाँ पर हम उसको ठीक कर सकें उसको ठीक किया जाए। तो तमिलनाडु में $300 मिलियन का लोन अप्रूव किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ताकि अर्बन वाटर सीवेज सिस्टम को यहाँ पर डेवलप किया जा सके। दूसरा, जो ये $100 मिलियन का लोन अप्रूव किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ये था इंस्पायर्स प्रोग्राम के लिए। ये इंस्पायर्स प्रोग्राम कहाँ का है? सिक्किम का है। और इसके अंडर जो विमेन है, जो यंगस्टर्स हैं, उनको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी, उनको यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी, उनको ट्रेन किया जाएगा, ताकि जो हाई ग्रोथ एंड प्रायोरिटी सेक्टर्स एरिया है वहां पर उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.